السلام علیکم، سری 42 کے نیوز اسٹوڈیو سے شہر کی سب باتوں کے ساتھ میں ہوں ریحان طارق اور میں ہوں سیمل ہاشمی۔ نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر، مگر اس سے پہلے ایک شارٹ بریک۔ ضلعی انتظامیہ کا غیر قانونی رہائشی اسکیمیں روکنے اور ضلعی اراضی بچانے کے اہم اقدامات۔ لاہور شہر کے 5 مضافاتی علاقوں میں ہاؤسنگ اسکیمیں بنانے پر پابندی لگا دی۔ ڈرائیونگ لائسنس کے لیے نئے سال کے ٹکٹ تاحال جاری نہیں ہو سکے، شہریوں کو ڈرائیونگ لائسنس کے حصول اور تجدید میں مشکلات کا سامنا۔ ینگ ڈاکٹرز کی بھوک ہڑتال 5ویں روز بھی جاری، 10 فروری کو میٹرو بس روٹ پر جمع ہونے کا اعلان، جبکہ تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات شفقت محمود کا اظہار یکجہتی کے لیے YDA کے ہڑتالی کیمپ کا دورہ، ادھر طویل عرصے کی غیر حاضری پر 90 ڈاکٹرز برطرف۔ ڈرگ کورٹ میں بنیادی سہولیات کی شدید کمی، جج کے پاس ڈرائنگ روم نہیں، جبکہ وکلا اور سائلین بھی سڑک پر کھڑے ہو کر پیشے کا انتظار کرنے پر مجبور۔ موسم بہتر ہونے پر سوئی گیس کمپنی کا پنجاب کی صنعتوں اور CNG اسٹیشنز کو ہفتے میں 2 دن گیس فراہم کرنے کا فیصلہ۔ MD عارف حمید کا کہنا ہے کہ 4.5 ارب کی گیس چوری پکڑی، اوگرا نے 1 روپیہ بھی وصول نہیں کیا۔ اب لاہوری CNG ماہرین انڈونیشیائی باشندوں کو تربیت دیں گے، وزارت توانائی کا 8 رکنی وفد لاہور پہنچ گیا۔ صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کی کراچی سے لاہور آمد، گورنر مخدوم احمد محمود، میاں منظور بٹو اور دیگر نے صدر مملکت کا استقبال کیا۔ پنجپورہ گراؤنڈ سبزدار میں پیپلز پارٹی پنجاب کا ورکرز کنونشن، میاں منظور احمد بٹو کا کہنا ہے کہ صدر آصف علی زرداری کی کامیاب پالیسیوں کے نتیجے میں جمہوری حکومت پہلی مرتبہ اپنی مدت پوری کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے وفد کی ظہور الہی روڈ پر آمد، چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر مشاورت۔ کمرشل فیس کی عدم ادائیگی، LDA نے سمن آباد میں نیو ماشاءاللہ موٹرز، رنداوا موٹرز سمیت 16 شو رومز سیل کر دیے۔ چیف کیپٹل پولیس آفیسر امجد جاوید سلیمی نے عہدے کا چارج سنبھال لیا، پولیس دستے کی سلامی، اپلائیڈ 4 موٹر سائیکلوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی، نئے CCPO کی میڈیا سے گفتگو۔ اقبال ٹاؤن میں ان لینڈ ریونیو سروس کے 39ویں کامن کے افسران کی پاسنگ آؤٹ، چیئرمین FBR علی ارشد حکیم کا کہنا ہے کہ سیاستدان NTN نمبر جلد حاصل کریں، درست اثاثہ جات ظاہر نہ کرنے والوں کو جیل کی ہوا کھانا پڑے گی۔ یونیورسٹی کا سیکیورٹی گارڈ محمد علی ڈکیت گینگ کا سرغنہ نکلا، چونگ پولیس نے 5 ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا، ملزمان سے 7 لاکھ کی نقدی، اسلحہ، CCTV کیمرے اور کمپیوٹرز برآمد۔ مینجمنٹ افسران میں سینیورٹی کا تنازع، SSP گوہر نفیس کا ڈاکٹر رضوان کے ماتحت کام کرنے سے انکار، گوہر نفیس نے ٹرانسفر یا چھٹی پر بھیجنے کی استدعا کر دی۔ ادھر وزیر اعلیٰ پنجاب کی مصروفیات کے باعث 3 اضلاع کے DPOs کے انٹرویو ملتوی۔ لاہور پولیس نے سگیاں پل ناکے پر 4 مبینہ دہشت گرد گرفتار کر لیے، تفتیش کے لیے حساس ادارے کے حوالے۔ اصلی کے ساتھ جعلی نوٹ بھی چلیں گے، جعلی کرنسی کی مکمل روک تھام ممکن نہیں، اسٹیٹ بینک کے ڈائریکٹر کرنسی مینجمنٹ تسلیم قاضی کا اعتراف۔ رائل بینک آف اسکاٹ لینڈ والٹن روڈ کا آرمی ہاؤسنگ سوسائٹی کے رہائشی غلام نبی کے خلاف 1 کروڑ 15 لاکھ روپے قرض ریکوری کا دعویٰ، بینکنگ کورٹ نے وکلاء کو طلب کر لیا۔ صدر دہلی ہائی کورٹ بار امرجیت سنگھ کا اعزاز میں ہائی کورٹ بار میں تقریب، چیف جسٹس امرتا بندیال اور ججز کی شرکت۔ امریکی کونسل جنرل نینا ماریا فائٹ کا گلبرگ میں الف لیلا لائبریری کا دورہ، بچوں کو کہانی بھی سنائی۔
कैंट में साबिक आईजी पुलिस मलिक इकबाल की अहलिया और एसएसपी इमरान अहमद की खुशदामन की रस्म चहलम। उधर टेक्स सोसाइटी में ब्रिगेडियर रिटायर्ड इनामुल हक की नमाज जनाजा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सुपर लीग मुलतवी करने का ऐलान। उधर लेक सिटी और बैंक कलफला ने नौ रिपोर्ट पोलो टूर्नामेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में 3 रोजा शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल तलबा को 28 फिल्में दिखाई जाएंगी। और वैलेंटाइन डे की मुनासबत से फैशन पाकिस्तान लाउंज में मलबूसात के ब्रांड किस्म की नुमाइश, खवातीन की गहरी दिलचस्पी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब बुलेटिन में खबरें तफसील के साथ। डीसीओ नूरुल मेंगल ने गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों को रोकने और ज़राई अराज़ी से बचाने के लिए शहर के 5 मुज़ाफ़ाती इलाकों में हाउसिंग स्कीमें बनाने पर पाबंदी आयद कर दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक फिरोजपुर रोड पर वाक़ मजबे खाना 5 नंबर स्टॉप से स्पॉट प्लांट LDA तक, स्पॉट डिफेंस रोड और फिरोजपुर रोड के मशरक़ की जानिब हाउसिंग स्कीमें बनाने पर पाबंदी लगाई गई है। सूर्यासल सुंदर रोड, जनूबी रायवन रोड, मुल्तान रोड की मगरबी जानिब और जनूबी मांगा मंडी रोड पर भी हाउसिंग स्कीमें बनाने पर पाबंदी आयद की गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इन इलाकों में हाउसिंग स्कीमें मंजूर न करने की वाज़ेह हिदायत दी गई हैं। 1 माह 8 रोज गुजरने के बावजूद अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नए साल की टिकटें जारी नहीं हो सकी, जिसके बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर के मुताबिक कल से लाइसेंस की तजदीद का अमल शुरू हो जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस के हुसूल के लिए टिकटें जारी न होने के बायस शहरियों को रोजाना सीटीओ दफ्तर और टोकर न्यासबेग में वाक़े ट्रैफिक पुलिस लाइन से खाली हाथ वापस जाना पड़ता है। सीटीओ कैप्टन रिटायर्ड सुहेल चौधरी का कहना है कि नए साल की टिकटें जारी होने तक नया ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि शहरियों की सहूलत के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस हफ्ते से चालान फॉर्म के जरिए फीस वसूल करके ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद और डुप्लीकेट लाइसेंस जारी करने का अमल शुरू कर देगी। सुहेल चौधरी ने बताया कि शहरी लर्नर लाइसेंस भी हासिल कर सकेंगे। उन्होंने मजीद बताया कि वो ड्राइविंग लाइसेंस के टिकटें जल्द शाया कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये टिकट्स का जो इशू है ये 1 जनवरी से आ रहा है। हमने बारहा महकमा डाक से रिटर्न रिक्वेस्ट भी, वर्बल रिक्वेस्ट भी की हैं। उनका ये मौक़िफ़ है कि ये कराची से टिकट्स प्रिंट होती हैं। अब तकरीबन 1.25 महीना गुजर चुका है, लोगों को बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस आ रही है। महकमा सेहत ने ड्यूटी से लंबी गैर हाजिरी पर 90 डॉक्टर्स की फौरी बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। डॉक्टरों के खिलाफ तमाम कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद कार्रवाई की गई। महकमा सेहत ने गैर हाजिर डॉक्टर्स को शो काज नोटिस और पर्सनल हेयरिंग नोटिस के साथ इश्तिहारात भी शाये कराए। ड्यूटी ज्वाइन न करने पर 90 डॉक्टर्स को मुलाजमत से फारिग कर दिया गया। अस्पतालों के MS की रिपोर्ट पर डॉक्टर्स के खिलाफ एक्शन लिया गया। अब खाली आसामियों पर नए डॉक्टर्स भर्ती किए जाएंगे। महकमा सेहत ने सूबे भर में तमाम अस्पतालों के MS और EDOs हेल्थ से गैर हाजिर डॉक्टर्स की रिपोर्ट मांग ली है। यंग डॉक्टर्स का भूख हड़ताली कैंप 5वें रोज भी जारी रहा। गौसर आजम रोड पर यंग डॉक्टर्स ने नमाज जुमा अदा की। YDA के नुमाइंदों ने ऐलान किया कि 10 फरवरी को वज़ीर आला पंजाब को गुजारिशात पेश करने के लिए पंजाब भर के यंग डॉक्टर्स मेट्रो बस के रूट पर जमा होंगे। YDA की जानिब से अपने मुतालिबात के हक में गौसर आजम रोड पर भूख हड़ताली कैंप 5वें रोज भी जारी है। भूख हड़ताली कैंप में बैठने वाले मुतादिद यंग डॉक्टर्स को हालत खराब होने पर कैंप में ही तबी इमदाद फ्राहम की गई। YDA के ओहदेदारान ने भूख हड़ताली कैंप में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वज़ीर आला के पास मेट्रो बस मंसूबे के अलावा दीगर कामों के लिए वक्त नहीं है। यंग डॉक्टर्स ने ऐलान किया कि इतवार के रोज मेट्रो बस के इफ्तिताह पर लाहौर समेत सूबे भर के यंग डॉक्टर्स मेट्रो बस के रूट पर जमा होंगे और वहां पर वज़ीर आला मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को अपनी गुजारिशात पेश करेंगे। YDA के तर्जुमान डॉक्टर नासिर अब्बास का कहना था कि 10 फरवरी को मेट्रो बस के रूट पर जाने के लिए अगर एम्बुलेंस, व्हील चेयर्स और स्ट्रेचर्स पर भी जाना पड़ा तो जाएंगे और अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराते हुए मुतालिबात से आगाह करेंगे। उनका कहना था कि मेट्रो बस का रूट अवामी जगह है, वहां पर जाने पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। YDA की क़यादत ने ऐलान किया कि हुकूमत सरकारी अस्पतालों में गरीबों को मुफ्त अद्वियात और इलाज की सहूलत की फराहमी यकीनी बना दे तो भूख हड़ताल खत्म कर दी जाएगी। भूख हड़ताली कैंप में शरीक यंग डॉक्टर्स ने नमाज जुमा कैंप के सामने गौसुल आजम रोड पर अदा की। डॉक्टर नासिर हमदानी ने खुतबा दिया और नमाज पढ़ाई। शहर में खसरे के मजीद 66 केसेस की तस्दीक के बाद 19 रोज में खसरे के मरीजों की मजमूई तादाद 721 हो गई है। शहर में खसरा के मरीजों की तादाद रोज बरोज बढ़ती जा रही है। 24 घंटों के दौरान खसरे के आए हैं। चिल्ड्रन अस्पताल में 24, अमियो अस्पताल में 18, जनरल अस्पताल में 2, जना अस्पताल में 9 और सर्विसेज अस्पताल में खसरे के 3 नए मरीजों की तस्दीक की गई है।
شہر کے مختلف پرائیویٹ ہسپتالوں میں خسرہ کے 11 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ 19 روز کے دوران خسرہ کے مریضوں کی مجموعی تعداد 721 ہو گئی ہے۔ ڈرگ کورٹ سہولیات کے فقدان کا شکار ہو گئی۔ جج کے پاس ریٹائرنگ روم نہیں، وکلاء اور سائلین سڑک پر کھڑے ہو کر پیشی کا انتظار کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ لارنس روڈ پر 5 مرلے کے مکان میں ڈرگ کورٹ کی عدالت قائم ہے، جہاں وکلاء اور سائلین کو سہولیات کی فراہمی تو دور، جج کے پاس عدالتی امور نپٹانے کے لیے ریٹائرنگ روم بھی موجود نہیں ہے۔ عدالتی عملہ کے پاس ایک کچن نما کمرہ ہے تو دوسری جانب کشمیر مونومنٹ کا دفتر ہے۔ سہولیات سے محروم اس عمارت کی سیکیورٹی بھی انتہائی ناقص ہے۔ ڈرگ مافیا کے اہم کیسز کی سماعت میں آنے والے ملزمان کو ہتھکڑی لگا کر سڑک پر ہی کھڑا رکھا جاتا ہے، جس کے باعث کسی بھی ناخوشگوار واقعے کے پیش آنے کا خطرہ ہمہ وقت رہتا ہے۔ بار روم نہ ہونے کی وجہ سے وکلاء سڑک پر کرسیاں رکھ کر بیٹھنے پر مجبور ہیں۔ وکلاء اور سائلین نے مطالبہ کیا ہے کہ ڈرگ کورٹ کو سہولیات فراہم کی جائیں۔ LDA نے کمرشل فیس کی عدم ادائیگی پر سمن آباد میں نیو ماشاء اللہ موٹرز، رندھاوا موٹر سمیت 16 شو رومز سیل کر دیے۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے شعبہ کمرشلائزیشن نے سمن آباد میں کمرشل فیس کی عدم ادائیگی پر 16 عمارتیں سربہ مہر کر دی ہیں۔ سربہ مہر کی جانے والی عمارتوں میں نیو ماشاء اللہ موٹرز، اورینٹل موٹرز، طاہری موٹرز، نیو حق موٹرز، الفتح موٹرز، راجہ موٹرز، رندھاوا موٹرز سمیت متعدد عمارتیں شامل ہیں۔ LDA حکام کے مطابق سربہ مہر کی گئی عمارتوں کے مالکان کے ذمہ کمرشل فیس کی مد میں کروڑوں روپے واجب الادا تھے، جبکہ مالکان کو نوٹسز بھی جاری کیے گئے، لیکن فیس جمع نہ کرانے پر عمارتوں کو سربہ مہر کیا گیا ہے۔ دوسری جانب LDA نے 404B گلشن راوی میں زیر تعمیر 4 دکانوں کے شٹرز کو مسمار کر دیا ہے۔ CCPO لاہور امجد جاوید سلیمی نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ کہتے ہیں کہ لاہور کے شہریوں کو احساس تحفظ فراہم کرنا ان کی اولین ترجیح ہے۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں زین العابدین کی یہ رپورٹ۔ CCPO امجد جاوید سلیمی لاہور پولیس ہیڈ کوارٹر میں پہنچے تو SSP ایڈمن طارق عباس قریشی، SSP DND شارق کمال اور نایاب حیدر سمیت دیگر افسران نے ان کا استقبال کیا۔ دونوں SSPs نے CCPO کو گلدستے پیش کیے، جس کے بعد پولیس کے چاق و چوبند دستے نے انہیں سلامی دی۔ CCPO امجد جاوید سلیمی نے دفتر کے مختلف حصوں کا دورہ کیا اور عملے سے ملاقات کی۔ سٹی 42 سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جرائم پر قابو پانا اور امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنا ان کی اولین ترجیح ہے۔ امجد جاوید سلیمی نے کہا کہ شہریوں میں احساس تحفظ پیدا کرنا ان کی حکمت عملی کا حصہ ہوگا۔ میری جو پرائرٹی ہوگی کہ ایک پبلک کا ایک عام آدمی، ایک عام شہری میرے پولیس آفیسر کو دیکھ کے ایک فرینڈلی پولیس کا جو ہے وہ رکھے ذہن میں کہ یہ ایک فرینڈلی پولیس ہے، کوئی جابر پولیس نہیں ہے۔ امجد جاوید سلیمی نے کہا کہ شہریوں میں احساس تحفظ پیدا کرنا ان کی حکمت عملی کا حصہ ہوگا۔ CCPO نے کہا کہ میڈیا اور عدلیہ کی موجودگی میں جابرانہ پالیسی ناممکن ہے۔ وہ لاہور پولیس پر زور دیں گے کہ دوستانہ پالیسی کے ذریعے شہریوں میں پولیس کا امیج بہتر کیا جائے۔ انہوں نے لاہور میں تعیناتی کے دوران کرمنل جسٹس سسٹم کو مضبوط کرنے کے عزم کا اظہار بھی کیا۔ امجد جاوید سلیمی نے کہا کہ لاہور پولیس بہت جلد بغیر نمبر پلیٹ موٹر سائیکلوں اور غیر قانونی موبائل سمز کے خلاف کریک ڈاؤن کرے گی۔ آج کل سارا کرائم جو ہے وہ سم بیسڈ کرائم ہے، کمپیوٹر بیسڈ کرائم ہے، سیل فون بیسڈ کرائم ہے سارے کا سارا، تو اس پہ ہمیں خاصا کام کرنا ہوگا۔ دوسرا جو میری پرائرٹی ہوگی وہ مثلاً شہر میں اگر ایک اپلائیڈ فار موٹر سائیکلز پہ کریک ڈاؤن کیا جائے تو اسٹریٹ کرائم اس سے رکتا ہے، گورنمنٹ کی خزانے میں جو ہے وہ ٹیکس جمع ہوتا ہے۔ امجد جاوید سلیمی نے بطور CCPO اپنا پہلا حکم جاری کرتے ہوئے SSP ایڈمن کو جلد از جلد لاہور پولیس کی ویب سائٹ بحال کرنے کی ہدایت جاری کی۔ کیمرامین واجد علی کے ساتھ زین العابدین، سٹی 42۔ اہم بزرگ شخصیات اور مقامات سے منسوب اشیاء ہیں یہ خوب، دیکھنے والا جائے ان میں ڈوب۔ ان میں خاک شفا کا پیالہ اور جبل رحمت کا پتھر، اختر حیات کا پڑھ لو یہ اکھر۔ Who is the Lafan? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan? La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. To Allah is our return. گلشن راوی D2 کے مکان نمبر 156 کے مقیم محمد امتیاز اختر قادری کے پاس مقدس شخصیات سے منسوب اشیاء کا ذخیرہ موجود ہے۔
जिसे वो अपनी जान से ज़्यादा अजीज रखते हैं। इनमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली और हज़रत इमाम हुसैन का मुँह मुबारक, जबल रहमत का पत्थर, खाना काबा का अंदरूनी पत्थर, गुलाफ़े काबा का टुकड़ा, मदीना की मिट्टी का प्याला, खाना काबा के अंदरूनी जीने का कालीन, हज़रत यूसुफ की जाए पैदाइश का पत्थर, मस्जिद हराम का पत्थर, हज़रत हमज़ा के मज़ार से मिलने वाली खजूर, गारे शोर का पत्थर, रोज़ा रसूल की जालियाँ साफ करने वाले मोर पंख का एक टुकड़ा, सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों का पत्थर, खाना काबा के दरवाजे का तलाई कील शामिल है। इन अशिया के अमीन का कहना है कि उन्होंने ये अशिया खरीद नहीं की, उनके दोस्तों ने हज और उम्रा के दौरान तोहफतन दी हैं। हज उम्रे के दौरान वहाँ से कोई दोस्तों ने काफ़ी तबरकात मुझे दिए और सऊदीया में मेरे दोस्त हैं हरम शरीफ में, वहाँ से इसी तरह ये कलीन मुबारक और दूसरी चीज़ें वहाँ से अल्लाह ताला की फजल से काफ़ी दफ़ा सादत हासिल हुई है। हज उम्रे की 9 दफ़ा मैं गया हूँ, 2 दफ़ा हज किया, 7 दफ़ा उम्रे पे, और वहाँ से आते जाते ये काफ़ी तबरकात ये मिलते रहते हैं। इम्तियाज़ कादरी 2 हज और 7 उम्रे कर चुके हैं। उनका कहना है कि वो सफ़र हज के मौके पर गारे हिरा और गारे शोर में नवाफिल भी अदा कर चुके हैं। उनका ये भी कहना था कि मक्का और मदीना के सफ़र के दौरान आदमी हर दुख, दर्द और गम भुला बैठता है, जो एक मौजिज़े से कम नहीं। वो चाहते हैं कि उनकी सारी ज़िंदगी ऐसी ही अशिया जमा करने में गुजरे। इस तरह इंसान बहुत सी मायूब बातों और कामों से बचा रहता है। इम्तियाज़ कादरी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के मरूफ कुओं का पानी, शिफा बख्श जड़ी बूटियाँ और दीगर ऐसी अशिया भी जमा कर रखी हैं जो किसी न किसी मुक़द्दस हस्ती से मंसूब है। कैमरामैन यावर भट्टी के हमरा अख्तर हयात, सिटी 42। बुलेटिन का हिस्सा होंगी कुछ मजीद अहम खबरें, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी अपने साहबजादे पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा 3 से 4 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंच गए। गवर्नर पंजाब, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और अहदेदारान ने उनका इस्तकबाल किया। आसिफ अली जरदारी ओल्ड एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए बहरिया टाउन में नौ तामीर शुदा बिलावल हाउस रवाना हो गए। सदर आसिफ अली जरदारी की लाहौर आमद पर गवर्नर पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद ने उनका इस्तकबाल किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मियां मंजूर भट्टू, अपोजिशन लीडर राजा रियाज, हाजी अजीजुर रहमान चंद और इरशाद भट्टी भी मौजूद थे। पंजाब हुकूमत की जानिब से मियां मुस्तफा शुजाउर रहमान ने उनका इस्तकबाल किया। आसिफ अली जरदारी को खुशामदीद कहने के लिए चीफ सेक्रेटरी पंजाब नासिर महमूद कोसा, IG खान बेग भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। सदर आसिफ अली जरदारी बहरिया टाउन में नौ तामीर शुदा बिलावल हाउस का इफ्तिताह और वहीं कयाम करेंगे। ज़राए के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी जाती उम्रा रायमंड जाकर मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से उनके भाई अब्बास शरीफ के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत करेंगे। सब्ज़ार में पीपल्स पार्टी पंजाब के वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर मियां मंजूर अहमद भट्टू समेत अहम रहनुमाओं और कारकुनान ने शिरकत की। कोंजपुरा ग्राउंड में मुनाकिदा कन्वेंशन में पीपल्स पार्टी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी तनवीर अशरफ कायरा, पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा रियाज अहमद, पीपल्स पार्टी पंजाब के फाइनेंस सेक्रेटरी औरंगजेब बरकी, बाबर भट्ट, आसिफ नागरा, मलिक अमजद अली, पीपल्स पार्टी खवातीन विंग की रहनुमा ओडी पठानी और रेहाना याकूब समेत हजारों की तादाद में कारकुनान शरीक हुए। कन्वेंशन से खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर मियां मंजूर अहमद भट्टू ने कहा कि सदर आसिफ अली जरदारी की कामयाब पॉलिसियों के नतीजे में जमहूरी हुकूमत पहली मरतबा अपनी मुद्दत पूरी कर रही है। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि पीपल्स पार्टी के कारकुनान पंजाब और लाहौर को पीपल्स पार्टी का कला बनाकर दम लेंगे। बैजमेट अफसरान में सीनियरिटी का तनाज़ा पैदा हो गया है। SSP गौहर नफीस ने CPO मुल्तान डॉक्टर रिजवान के मातहत काम करने से इनकार कर दिया। ज़राए का कहना है कि ग्रेड 19 के 2 पुलिस अफसरान के दरमियान सीनियरिटी का तनाज़ा पैदा हो गया है। CPO मुल्तान के ओहदे पर तरक्की पाने वाले डॉक्टर मोहम्मद रिजवान और SSP ऑपरेशंस मुल्तान गौहर नफीस बैचमेट हैं। गौहर नफीस ने डॉक्टर मोहम्मद रिजवान के मातहत काम करने से माजरत कर ली है। SSP गौहर नफीस ने IG पुलिस से अपने तबादले या छुट्टी पर भेजने की इस्तदा की है। ज़राए का कहना है कि गौहर नफीस के तबादले का इम्कान है।
वज़ीर आला पंजाब की मसरूफियात के बायस 3 अजला में DPOs की तैनाती के लिए होने वाले इंटरव्यू मुलतवी कर दिए गए हैं। पंजाब में 3 अजला के DPOs की खाली आसामियां पड़ी हैं, जिन पर जल्द तकरीरी का इम्कान है। SP इसरार अब्बासी, शाहनवाज इनामुर रहमान, SSP इंतजार हुसैन जाफरी, SP जुल्फकार अहमद और SP राना शाहिद परवेज को इंटरव्यूज के लिए ऐवान वज़ीर आला बुलाया गया था, लेकिन वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की मसरूफियात के बायस जुमे के रोज इंटरव्यूज नहीं हो सके। ज़राए का कहना है कि मुलतवी किए गए इंटरव्यू जल्द दोबारा किए जाएंगे, जिसके बाद DPOs की खाली असामियों को पुर कर दिया जाएगा। अलिफ लैला लाइब्रेरी गुलबर्ग में मुनाकिदा तकरीब में अमरीकी काउंसलेट जनरल नीना मारिया फाइट ने बच्चों को कहानी सुनाई। गुलबर्ग में वाक़े अलिफ लैला लाइब्रेरी में मुनाकिदा तकरीब में नीना मारिया फाइट और गवर्नमेंट बरकत मार्केट की तालिबात ने शिरकत की। तकरीब में अमेरिकन कॉन्सुलेट के ऑफिसर केली फॉर्मर, ब्रेलियर एलेक्स, कैरन एडनसन समेत नायब सदर अलिफ लैला फाउंडेशन राबिया खान भी मौजूद थी। अमरीकी कॉन्सुलेट जनरल नीना मारिया फाइट ने तालिबात को कहानी सुनाई, जबकि तालिबात ने भी उन्हें उर्दू की नज़्म सुनाई, जिसे नीना मारिया फाइट ने उर्दू में पढ़ा। तालिबात ने अमेरिकन कॉन्सुलेट से मुख्तलिफ सवालात भी किए। नीना मारिया फाइट का कहना था कि लाइब्रेरी के इस्तेमाल से बच्चों में न सिर्फ पढ़ने का शऊर उजागर होगा, बल्कि उनके पढ़ने की सलाहियत में भी इजाफा होगा। बुलेटिन का हिस्सा होंगी कुछ मजीद अहम खबरें, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। खुशामदीद नाज़रीन, आपको बताते चलें कि सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के माबैन बिलावल हाउस में मुलाकात हुई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं आमिर डार से। जी आमिर, बताइएगा इस मुलाकात के हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? हाँ जी, जैसा कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी आज जो है वो कुछ रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंचे हैं और आज उन्होंने बिलावल हाउस जो कि लाहौर में नया तमीर किया गया है उसका इफ्तिताह भी किया है। और अभी कुछ देर पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान राजा परवेज अशरफ यहाँ बिलावल हाउस में पहुंचे और उन्होंने सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की है और ये मुलाकात इस वक्त भी जारी है, जबकि शरीफ चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है बिलावल भुट्टो जरदारी वो भी इस मुलाकात में मौजूद हैं। इस मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तफसीली जो है वो गुफ्तगू की जा रही है, जबकि बलोचिस्तान में जो गवर्नर राज लगा है उसके बाद की जो मुल्की सियासत पर उसके असरात मुरतब हुए हैं उस पर तफसीली जो है वो बातचीत की जा रही है। जबकि जो अभी जो है वो जिस तरह असम्बलियाँ तहलील की जाएंगी और उसके बाद निगरान सेटअप आएगा उस पर भी जो है वो बात की जा रही है। जबकि कल सदर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कौमी और सूबाई अरकान असम्बली हैं और जो डिस्ट्रिक्ट सदूर हैं उनका भी इजलास तलब किया है। तो इस हवाले से मुकम्मल एक लाहे अमल तय किया जा रहा है, क्योंकि इलेक्शन बिल्कुल करीब हैं और जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्हें भी जो है वो एतमाद में लिया जाएगा। और ये कहा जा रहा है कि एक दो दिनों में जो है वो सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी रायवेंड भी जाएंगे और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ उनसे मुलाकात करेंगे और उनके भाई की वफात पर तस्दीक भी करेंगे। जबकि चौधरी बरादरान जो कि काफी जमात के हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हुकूमत में इत्तेहादी भी हैं उनसे भी मुलाकात की जाएगी और सीट टू सीट एडजस्टमेंट और अगले इलेक्शन के हवाले से एक मुकम्मल लाहे अमल तैयार किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आमिदान, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, आमिदान हमारे साथ टेलीफोनिक लाइन पर मौजूद थे, जो हमें सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के माबैन होने वाली मुलाकात के हवाले से अपडेट कर रहे थे। और नाज़रीन, खेल के मैदान में कौन चीज़ और किस ने कही बात, अभी जानेंगे सिटी स्पोर्ट्स में। नूरपुर पोलो टूर्नामेंट में लेक सिटी और बैंक अल-फलाह ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। रमा सीजन के पहले टूर्नामेंट में शिरकत करने वाली लेक सिटी की टीम के खिलाड़ी जीत के लिए कितने पुरज़म हैं, ये जानते हैं इजाज वसीम बाकरी की इस रिपोर्ट में। बादशाहों का खेल पोलो इन दिनों लाहौर में तेजी से मकबूलियत हासिल कर रहा है। पोलो के खेल के फिरोग के लिए काम करने वालों में लेक सिटी का नाम सर फहरिस्त है। लेक सिटी की टीम ने रवां सीजन पहला टूर्नामेंट खेला और फाइनल तक रसाई हासिल कर ली। लाहौर पोलो क्लब में जारी नूरपुर पोलो टूर्नामेंट के अहम मुकाबले में लेक सिटी ने मास्टर पेंट को 3 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई। लेक सिटी की जानिब से हसाम अली हैदर ने 2, काशिफ जमाल और उमर असजद ने 1-1 गोल स्कोर किया। खिलाड़ियों का कहना है कि लेक सिटी की तरह दीगर बड़े इदारे भी सामने आए तो पोलो के खेल को मजीद तरक्की मिलेगी। अगर पोलो में कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप आएगी किसी भी स्पोर्ट में, आप पोलो कोई भी पाकिस्तान स्पोर्ट ले आप देखें कितनी तरक्की हो सकती है। ऑब्वियसली हमें स्पॉन्सरशिप तो ज़रूरत है, आपके सामने ही क्रिकेट में है, क्रिकेट देखें कहाँ पहुँची हुई। पोलो को पहले ही बहुत फ़र्क पड़ गया है लेक सिटी जैसी ऑर्गेनाइजेशन से जिन्होंने बड़ा एक्टिवली सपोर्ट किया, क्योंकि ये वैसे भी एक एक्सपेंसिव स्पोर्ट है। मैं तो बहुत खुश हूँ जी लेक सिटी के आने से। जितने स्पॉन्सर्स आएंगे उतना मौका मिलेगा सबको खेलने का, जितने बड़े स्पॉन्सर्स आएंगे उतना बेहतर है। इससे पोलो को वैसे भी बूस्ट मिलेगा, क्योंकि हाउसिंग इंडस्ट्री में पोलो ग्राउंड होना, राइडिंग होना, ये फैसिलिटीज़ होना वैसे भी इसी इंडस्ट्री का हिस्सा है।
नूरपुर पोलो टूर्नामेंट के दूसरे अहम मैच में बैंक अल-फलाह ने इंडस मेनिंग को 3 के मुकाबले में 5.5 गोल से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई। टूर्नामेंट का फाइनल एतवार को लेक सिटी और बैंक अल-फलाह की टीमों के माबैन खेला जाएगा। कैमरामैन जाहिद शफी के साथ एजाज वसीम, बाकरी, सिटी 42। मुस्लिम जिमखाना क्रिकेट क्लब ने यंगस्टर क्रिकेट क्लब को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी है। मॉडल टाउन फुटबॉल क्लब में होने वाले मैच में यंगस्टर क्रिकेट क्लब ने पहले खेलते हुए 30 ओवर्स में 136 रन बनाए। मोहम्मद काशिफ ने 37 और वकार अहमद ने 21 रन बनाए। मुस्लिम जिमखाना की जानिब से हाजी रफीक ने 4 विकेटें हासिल की। जवाब में मुस्लिम जिमखाना की टीम ने मतलूबा हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। मोहसिन परवेज 67 और मोहम्मद नदीम 43 रन बनाकर नुमाया बल्लेबाज रहे। यंगस्टर क्लब की जानिब से मोहम्मद नौमान ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। नेशनल सीनियर वेटरन क्रिकेट क्लब के लीग मैच में लाहौर शाहीन ने पंजाब कॉटेज इंडस्ट्री को 42 रन से शिकस्त दे दी है। शाह फैसल क्रिकेट ग्राउंड में खेले जाने वाले मैच में लाहौर शाहीन की टीम ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 30 ओवर्स में 179 रन बनाए और उसके तमाम खिलाड़ी आउट हो गए। मोहम्मद अरशद ने 62 और नदीम सरवर ने 18 रन बनाए। मद्दे मुकाबिल टीम की जानिब से मोहम्मद शफीक ने 3, गुलाम मुर्तजा और मोहम्मद शुएब ने 2-2 विकेटें हासिल की। पंजाब कॉटेज इंडस्ट्री की टीम हदफ के ताक़ुब में 137 रन बनाकर आउट हो गई। मोहम्मद साबिर ने 30 और मोहम्मद शफीक ने 20 रन बनाए। लाहौर शाहीन की तरफ से मोहम्मद आरिफ और मुजाहिद अहमद ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। न्यू इत्तफाक क्रिकेट क्लब ने दोस्ताना मैच में चौबुर्जी एग्लेट्स को 26 रन से शिकस्त दे दी है। फैसल टाउन में न्यू इत्तफाक क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए मैच में मेजबान क्लब ने पहले बैटिंग करते हुए 10 विकेटों पर 236 रन बनाए। तस्लीम आरिफ 41, कमर फरीद और मोहम्मद अहमद 35 रन बनाकर नुमाया बल्लेबाज रहे। चौबुर्जी एग्लेट्स की जानिब से मोहम्मद फहद 4, मोहम्मद उमर और आसिफ अली 2-2 विकेटें लेने में कामयाब हुए। जवाब में चौबुर्जी एग्लेट्स की पूरी टीम 210 रन पर पवेलियन लौट गई। मोहम्मद जीशान ने 52 और वसीम अहमद ने 50 रन बनाए। न्यू इत्तफाक क्रिकेट क्लब की जानिब से कप्तान तस्लीम आरिफ ने बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए 4, मोहम्मद एजाज ने 2 जबकि हाफिज मजहर और मोहम्मद साद ने 1-1 खिलाड़ी को आउट किया। मौसम बेहतर होने पर सुई गैस कंपनी ने पंजाब की सनतों और सीएनजी स्टेशन को हफ्ते में 2 दिन गैस देने का फैसला किया है। एमडी आरिफ हमीद कहते हैं कि 4.5 अरब की गैस चोरी पकड़ी, ओगरा ने 1 रुपया भी वसूल नहीं किया। हेड ऑफिस कश्मीर रोड पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एमडी सुई गैस आरिफ हमीद ने कहा कि शहर समेत पंजाब भर की सनतों और सीएनजी स्टेशन को 1.5 माह बाद गैस फराहम करने का फैसला किया गया है। शहर की सनतों और सीएनजी स्टेशन को अगले हफ्ते जुमेरात और जुमे के रोज से गैस फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि गैस को पाइपलाइनों में रखने की खबरों में सदाकत नहीं है। जितनी गैस सिस्टम में होती है वो सारिफीन को फराहम कर दी जाती है। आरिफ हमीद ने बताया कि मेन सप्लाई लाइन से चोरी होने वाली गैस की रिकवरी ओगरा के ज़िम्मा है। कंपनी ने 4.5 अरब रुपए की गैस पकड़ी, जिसमें से 1 रुपया भी वसूल नहीं किया जा सका है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से भर्तियों पर पाबंदी से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन से हिदायत मांग ली है। ऑल स्कूल और कॉलेज वैन ऑनर्स एसोसिएशन ने सीएनजी की बंदिश के खिलाफ रैली निकाली और नायब वज़ीर-ए-आज़म चौधरी परवेज इलाही के घर के बाहर 6 घंटे तक एहतजाजी धरना भी दिया। कैंपस पुल से ज़हूर इलाही रोड तक निकाली जाने वाली रैली में स्कूल वैन्स के ड्राइवर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुजाहिरीन ने सीएनजी स्टेशन की बहाली के लिए बैनर्स और प्लेकार्ड्स भी उठा रखे थे। ऑल स्कूल और कॉलेज वैन ऑनर्स एसोसिएशन के नुमाइंदों ने कहा कि सीएनजी की बंदिश से 10,000 से जायद गाड़ियां और 3,000 से जायद ऑटो रिक्शे जो तलबा को तदरीसी मकामात तक पहुंचाने का फरीजा अंजाम देते हैं बंद पड़े हैं। पेट्रोल की मद में किराए बढ़ाए तो बच्चों के वालिदैन नाराज होते हैं। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि एलटीसी बसों की तरह उन्हें भी सीएनजी फराहम की जाए। बादशाह मुजाहिरीन ने नायब वज़ीर-ए-आज़म चौधरी परवेज इलाही के घर के बाहर धरना दिया और उनसे मुतालबा किया कि वो सीएनजी की बहाली में उनकी मदद करें। धरने के बाद ज़हूर इलाही रोड पर मुसलसल 6 घंटे तक ट्रैफिक मुअत्तल रही। चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड सैयद आसिफ हाशमी से शाहदरा के सैकड़ों चिंची रिक्शा ड्राइवर्स ने मुलाकात की और उन्हें अपने मसाइल से आगाह किया। डिफेंस में सैयद आसिफ हाशमी से उनकी रिहाइश गाह पर रिक्शा ड्राइवर्स एसोसिएशन शाहदरा के सदर सुहेल जट, पीपी जोन 137 के सदर राहत सईद खान, सीनियर नायब सदर मोहम्मद सिद्दीक जफर ने मुलाकात की। सैयद फराज हाशमी, मियां मुनीर अहमद, मुजफ्फर इकबाल शाह, मोहम्मद सलीम मुगल, ज़ियाउल्लाह सिंधु और अल्ताफ हुसैन बलोच समेत दीगर रिक्शा ड्राइवर भी इस मौके पर मौजूद थे। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना था कि रावी पुल बंद करने से उनके घरों के चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे। सैयद आसिफ हाशमी ने रिक्शा ड्राइवर्स की हिमायत करते हुए कहा कि चिंची रिक्शा का रावी पुल से दाखिला बंद करना सरासर ज्यादती है। असली के साथ जाली नोट भी चलेंगे। स्टेट बैंक के डायरेक्टर करेंसी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट तस्लीम काजी ने एतराफ़ किया है कि जाली करेंसी की मुकम्मल तौर पर रोकथाम मुमकिन नहीं। तस्लीम काजी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक बैनुल-अक़वामी मयार का करेंसी पेपर इस्तेमाल करता है। उन्होंने बताया कि मरकजी बैंक करेंसी नोट पेपर की प्रोडक्शन खुद करता है। जाली नोट के एक सवाल पर तस्लीम काजी ने कहा कि जाली करेंसी पूरी दुनिया का मसला है जिसकी रोकथाम की गारंटी नहीं दी जा सकती। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट उमर अता बंदियाल ने कहा है कि अवाम को फौरी इंसाफ की फराहमी के लिए बार और बेंच को मिलकर काम करना होगा। वकला आईनी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए जुडिशल कमीशन में अपने नुमाइंदे दोबारा भिजवाएं। कराची शोहदा हॉल में दिल्ली हाई कोर्ट बार के सदर अमरजीत सिंह चंडियोग के एजाज में मुनाकिदा तकरीब में जस्टिस नासिर सईद शेख, जस्टिस मंजूर अहमद मलिक, जस्टिस खालिद महमूद खान, जस्टिस शेख नजमुल हसन, जस्टिस मोहम्मद अनवारुल हक, जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस शाहिद हमीद डार, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मोहम्मद अनवारुल हक ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट उमर अता बंदियाल ने अपने खिताब में कहा कि वकला आइन और कानून के मुहाफिज हैं और आइन की मजबूती के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बार एसोसिएशन के नुमाइंदे जुडिशल कमीशन के इजलास में अपनी शिरकत यकीनी बनाएं। वैलेंटाइंस डे की मुनासबत से फैशन पाकिस्तान लाउंज में मारूफ डिजाइनर सुमेरा खान के मलबूसात की ब्रांड कंशिंग की नुमाइश मुनक्किद हुई। गुलबर्ग में वाक़ फैशन पाकिस्तान लाउंज में मुनाकिदा नुमाइश में शिफॉन, लीलन और कॉटन के मलबूसात को नहायत खूबसूरती के साथ डिज़ाइन किया गया है, जिसमें मौसम बहार और वैलेंटाइन डे की मुनासबत से उम्दा और खुशनुमा रंगों का इस्तेमाल किया गया है। नुमाइश में दीदा ज़ेब मलबूसात को नहायत खूबसूरती से सजाया गया है। सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए डिज़ाइनर सुमेरा खान ने कहा कि नुमाइश में वैलेंटाइन डे के हवाले से लड़कियों के लिए लाल और पिंक रंग के मलबूसात डिज़ाइन किए गए हैं जो रोज़मर्रा में भी पहने जा सकते हैं। बुलेटिन का हिस्सा होंगी कुछ मजीद अहम खबरें, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च अल्लामा इकबाल टाउन में इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के 39वें कॉमन के 38 अफसरान की पासिंग आउट तकरीब मुनक्किद हुई। चेयरमैन FBR अली अरशद हकीम ने कहा है कि नेशनल टैक्स नंबर न रखने वाले सियासतदानों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के 39वें कॉमन में पास आउट होने वाले 38 अफसरान के एजाज में डॉट इनलैंड रेवेन्यू में तकरीब मुनक्किद हुई। कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम में पहली पोजीशन हासिल करने पर रिफत अजीज, अब्दुल हमीद को दूसरी और अस्मा सिद्दीक को तीसरी पोजीशन हासिल करने पर इनामात से नवाजा गया। कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद पास आउट होने वाले अफसरान में अमजद अली, सारा खान, फवाद अली खान, सैयद अजहर हुसैन, मंसूर अहमद खान, गुलाम मुस्तफ़ा, आसिम नसीर, अलीना आफ्ताब, मोहम्मद मुआज़ ज़फ़र, रिफत अजीज, फ़ारूक आमिर, जाहिद खान, मोहम्मद तारिक, अजीज, नजवा फारूक, अब्दुल हमीद, अब्दुल नबी, अतिया, कल्पना, शर्जील अहमद, शाहिद एजाज तारड़, सजाद हुसैन, राबिया यास्मीन, वसीम अकबर, नरक्षा खालिद, मोहम्मद फ़हीम, मंसूर विसाल, हसन बिन इजहार, अस्तहम ए सद्दीक, फारूक अहमद, इमरान महमूद, इसरार अहमद चीमा, मिसबाह नौरीन, अली रज़ा खान, खुर्शीद आलम, माजिद हुसैन, मोहसिन अमान शामिल थे। फेडरल रेवेन्यू अलायंस एम्प्लॉयज यूनियन लाहौर रीजन की एग्जीक्यूटिव बॉडी का इजलास सैयद नईम अब्बास शाह की ज़ेर सदारत हुआ। FRA के सदर ने महसूलात का हदफ पूरा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने का अज़्म का इजहार किया। मियां माजिद दरिया रोड पर वाक़े टैक्स हाउस में मुनक़िदा FBR यूनियन लाहौर रीजन की एग्जीक्यूटिव बॉडी के इजलास में सीनियर नायब सदर मोहम्मद इफ्तिखार चौधरी, नदीम पन्नू, वसीम सरवरदार, अल्ताफ मेहदी, आशिक बुखारी, रजी अब्बास, डॉक्टर शौकत, आयशा चीना, मोहम्मद शराफत, साबिर अली, नवाज घुरकी, जावेद जट, मलिक सहगल और अजहर जावेद समेत दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की। मुस्लिम लीग नून खवातीन विंग लाहौर की चीफ ऑर्गेनाइजर शाइस्ता परवेज मलिक ने पार्टी की कारकुन शाजिया खान की रिहाइशगाह पर कॉर्नर मीटिंग की। उनका कहना था कि खवातीन वोट के जरिए मुल्क में तब्दीली ला सकती हैं। जौहर टाउन में होने वाली कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून खवातीन विंग लाहौर की चीफ ऑर्गेनाइजर शाइस्ता परवेज मलिक ने कहा कि खवातीन अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करें और हकीकी तब्दीली के लिए वोट का इस्तेमाल करके मुस्लिम लीग नून को कामयाब कराएं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने जिस तरह सूबाई सतह पर काम किए हैं, आइंदा इंतखाबात में कामयाबी के बाद मुल्की सतह पर भी इसी तरह तरक्याती मंसूबे शुरू किए जाएंगे। शाइस्ता परवेज मलिक ने कहा कि मुस्लिम लीग नून खवातीन की बेहतर अंदाज में नुमाइंदगी के लिए पढ़ी लिखी खवातीन को आगे लाना चाहती है। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन समेत वफाकी वजीर मियां मंसूर अहमद भट्टू और 8 रुकनी इंडोनेशियन वफ्द लाहौर पहुंच गया है। तफसीलात जानते हैं नबील रजा मलिक की इस रिपोर्ट में। इंडोनेशिया की वजारत तवानाई का 8 रुकनी वफ्द ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन के तजर्बात से इस्तेफादा के लिए इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच गया है। इंडोनेशियन वफ्द ने बताया कि वो कुदरती गैस के ज़खायर को CNG सेक्टर में इस्तेमाल करने के ख्वाह हैं और इसी मकसद के लिए लाहौर आए हैं। We can have a good cooperation with the CNG equipment, like compressors, dispensers, and also converter kit, things like that.
CNG ایسوسی ایشن کے سینئر وائس چیئرمین شجاع انور کا کہنا ہے کہ غیر ملکیوں کا ان کے تجربات سے استفادہ کے لیے پاکستان آنا فخر کی بات ہے۔ ان کے پاس بھی اسی طرح نیچرل گیس کے اپنے ریزروز ہیں جس طرح ہمارے پاس ہیں، اور آئندہ بھی یہ دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کے پاس، جن ملکوں کے پاس نیچرل گیس ریزروز ہیں وہ CNG کو بڑی تیزی سے اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ادھر پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر میاں منظور احمد وٹو بھی اسلام آباد سے لاہور پہنچ گئے ہیں۔ میاں منظور احمد وٹو کا کہنا ہے کہ پنجاب کے دارالحکومت کی اہمیت صدر آصف علی زرداری کو لاہور لائی ہے۔ نئے صوبے بنانے سے پنجاب کمزور نہیں بلکہ مضبوط ہوگا۔ لاہور اور پنجاب کے معاملات سے بے خبر رہنا، اس میں دلچسپی نہ لینا، یہ تو کوئی بات نہیں نا۔ صدر پاکستان کا یہ بڑا اچھا اقدام ہے کہ وہ لاہور تشریف لا رہے ہیں۔ مسلم لیگ نواز کو صوبے بنانے کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ جب وہ کہہ چکے ہیں کہ بہاولپور کو بھی صوبہ بنا لو، جنوبی پنجاب کو بھی صوبہ بنا لو، تو بھائی جنوبی پنجاب اور بہاولپور کو اکٹھا صوبہ بنا لو، اس پہ بھی مان جاؤ۔ سیدھی بات ہے، عقل کی بات ہے، اس پہ ان کو اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام آباد ہی سے آنے والی PIA کی پرواز PK 653 کے ذریعے مسلم لیگ کاف کے صدر چودھری شجاعت حسین سمیت سینیٹر کامل علی آغا بھی لاہور پہنچ گئے ہیں۔ کیمرامین ٹیپو کے ساتھ نبیل ملک، سٹی 42۔ سابق IG پولیس ملک اقبال کی اہلیہ اور SSP عمران احمد کی خوشدامن کی رسم چہلم جامع مسجد کنٹونمنٹ بورڈ میں ادا کی گئی، جس میں سابق اور موجودہ پولیس افسران کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ملک اقبال کی اہلیہ کی رسم چہلم میں سابق گورنر پنجاب خالد مقبول، سابق IG اظہر حسن ندیم، میجر ریٹائرڈ ضیاء الحسن، ایڈیشنل IG سرمد سعید، خدا بخش آوان، غالب بندیشہ، DIG ڈاکٹر عارف مشتاق، SSP حسین حبیب، مرزا فاران بیگ، سجاد منج، SN یونس، امن کمیٹی کے رکن اجمل نقوی اور ڈاکٹر نصر اللہ رانا سمیت سماجی شخصیات اور پولیس اہلکاروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ رسم چہلم میں مرحومہ کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے قرآن خوانی اور دعا کی گئی۔ بلیٹن کا حصہ ہوں گی کچھ مزید اہم خبریں، لیکن یہاں وقت تو ایک بریک کا، دیکھتے رہیے سٹی 42۔ عدالتی کارروائیوں پر نظر ڈالیں گے سٹی عدالت میں۔ صارف عدالت نے ساہیوال کے شہری کو کمپریسر کٹر خراب دینے اور وارنٹی کے باوجود تبدیل نہ کرنے پر رائیونڈ میواں کے حاجی ریاض انجینئرنگ ورکس کے مالک کو وضاحت کے لیے 15 فروری کو طلب کر لیا۔ صارف عدالت میں ساہیوال کے رہائشی محمد فاروق نے رائیونڈ میں واقع حاجی ریاض انجینئرنگ ورکس کے مالک کے خلاف 80,000 روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ اس نے حاجی ریاض انجینئرنگ ورکس سے اپنے کاروبار کے لیے کمپریسر کٹر خریدا، جس کی انہوں نے باقاعدہ وارنٹی بھی دی، لیکن کٹر خراب نکلا، جس پر انہوں نے فوری طور پر ریاض انجینئرنگ ورکس کے مالک سے رابطہ کیا تو انہوں نے اس کی بات سننے سے انکار کر دیا۔ عدالت حاجی ریاض انجینئرنگ ورکس کے مالک سے 80,000 روپے ہرجانہ دلوائے، جس پر عدالت نے وضاحت کے لیے ریاض انجینئرنگ ورکس کے مالک کو 15 فروری کو طلب کر لیا ہے۔ شہر کے کاروباری اتار چڑھاؤ پر ایک نظر ڈالیں گے سٹی بزنس میں۔ اور اب ایک نظر غیر ملکی کرنسی ریٹس پر۔ سٹی 42 کے نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ city42.tv۔ جانتے رہیے شہر کی سب باتیں۔